I hope you all are able to see my screen now. So in the previous class, we discussed about all the conditions of the basis of charge under section 22. So there were three main conditions. Now we'll discuss about the applicability of section 22. Basis of charge were also given under section 22. So now we'll just discuss the application part of it. So first is house property in a foreign country. So in case a resident person of our India, in case he is having a property in a foreign country, so in that case also whatever the rent he is earning from that particular property will be charged under this act. So this act is this section is applicable even in case of the house property in the foreign country. Okay, so this is one part. The other one is regarding to the composite rent. So composite rent क्या होता है? Sometimes what happens, the owner charges rent from the tenant not only on account of the rent for the property but also on account of the service charges for various kind of facilities provided along with the house. जैसे आपकी सर्विसेज हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, योर गैस, तो ये सारी आपकी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है along with the house. Sometimes there are also cases when the furniture is also provided, जैसे fully furnished house मिलते हैं. So in such cases में whenever the rent is not just for the house but also for the services, उस rent को हम क्या कहते हैं? Composite rent. And this composite rent is further divided into two categories. So first category is composite rent on account of the rent for the property and the service charges for various facilities provided. Like मैंने जैसे डिस्कस करी थी, लिफ्ट, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वॉच एंड वार्ड, एयर कंडीशनिंग एक्सेट्रा. सो अगर कभी भी कॉम्पोजिट रेंट है जिसमें रेंट के साथ आपकी सर्विसेज भी आपको मिल रही है, तो इन सच अ केस यू ऑलवेज हैव टू split that composite rent into two parts. First part is the portion of the rent which is attributable to the letting of the premises, और जो भी वो portion होगा that will be charged under the income from house property head. ठीक है, जो rent house से होगा. जो other portion है which is attributable to the services, वो आपका या तो income from other sources या फिर PGBP. जोन सा भी केस होगा उसमें चार्ज होगा बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा. ठीक है, so this is the first case where the services are provided along with the houses. Next आपका केस आता है when the rent of the property is provided is charged along with the higher charges of machinery, plant और furniture. So अगर कोई भी ओनर के फर्नीचर भी प्रोवाइडेड है along with the house या कोई उसकी मशीनरी या कोई प्लांट, तो उस केस में there are two further sub categories. First category कहती है if the letting out of the property is separable from the letting of other assets. पुराना केस क्या था? सर्विसेज. इन दिस केस दिस इज द असेट, क्योंकि ये प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर आपके असेट में आते हैं. सो इन केस इट इज सेपरेबल, तो आप जो पोर्शन है ऑफ द रेंट विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द लेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी एक्सेसिबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और जो दूसरा पोर्शन है विच इज फॉर द लेटिंग ऑफ अदर असेट्स that shall be charged under PGBP or other sources as the case may be. ठीक है, जब सेपरेबल है तो आप इसको सेपरेट कर दोगे. जो भी प्रॉपर्टी या हाउस जो भी उसका रेंट है वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, बाकी बचा हुआ सारा या तो अदर सोर्सेज या फिर PGBP उसमें लगेगा. बट इन केस योर लेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज इनसेपरेबल, यू कैन नॉट सेपरेट इट. इट इज इन अ वे कि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो कि दिस इज फ्रॉम द हाउस और दिस इज फ्रॉम द फर्नीचर. उस केस में द एंटायर इनकम विल बी टैक्स्ड एज PGBP और एज अदर सोर्सेज. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा. सो इन शॉर्ट, हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ वही इनकम जाएगी जो सिर्फ प्रॉपर्टी से है. उसके अलावा चाहे सर्विस हो चाहे असेट हो, वो नहीं जाएगी. सेपरेबल के केस में आप सेपरेट कर दोगे, इनसेपरेबल के केस में आप PGBP या अदर सोर्सेज में डाल दोगे. बट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सिर्फ लेटिंग ऑफ द हाउस में ही जाएगी, अदरवाइज दूसरे केसेस में इट विल नॉट बी चार्ज अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. So this is the concept of your composite rent. Then next is when the house property is owned by co-owners and it is given under section 26. जो co-owners word है
which is again is not explicitly defined by your income tax act, but उसने guidelines दिए that how you can tax the co-owners. So co-owners क्या होते हैं? If a house property is owned by 2 or more persons, then we say that such persons are co-owners because दोनों मिलकर उस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं. एक सेकेंड. Is it everything clear till this point? Because I am getting a message that my internet connection is poor. अभी तक सब क्लियर है बच्चे? Any doubts so far? इससे प्रीवियस वाला स्लाइड एक बार समझा दो. नहीं, स्लाइड तो मैं समझा दूंगी. वैसे बेटा सब कुछ ठीक दिख रहा है ना? बिकॉज आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट माय इंटरनेट कनेक्शन इज स्लो. वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैम. नो मैम. ओके, परफेक्ट. ठीक है, तो मैं को-ओनर्स वाला बता रही थी आपको. व्हाट्स योर डाउट? अच्छा, कंपोजिट टैक्स में यू हैव डाउट. बेटा कंपोजिट टैक्स क्या होता है आपका कि जब आपको हाउस प्रॉपर्टी के साथ दूसरी सर्विसेज पे भी टैक्स चार्ज हो रहा है. जैसे आप काफी बार होता है, आपने सुना होगा कि फुल्ली फर्निश्ड होम आपके रेंट पे दिए जाते हैं जिसमें देयर इज ऑलरेडी फर्नीचर, आपका टीवी भी है, एयर कंडीशन भी है, सब कुछ उसके साथ मिलता है. तो जब भी रेंट खाली मतलब हाउस के अलावा उसकी सर्विसेज या उसके अंदर जो फर्नीचर है उससे रिगार्डिंग भी आपको पूरा टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसको कंपोजिट रेंट कहते हैं, क्योंकि वो खाली हाउस प्रॉपर्टी से नहीं है, वो सर्विसेज या उसके अंदर जो फर्नीचर है, सर्विसेज आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गई, गैस हो गई, तो ये सर्विसेज के मतलब ये आपको एक पूरा एक टोटल रेंट पे करना पड़ रहा है टू द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. तो उसको जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी के अलावा भी किसी चीज पे रेंट देते हो उसको कंपोजिट रेंट कहते हैं. तो आपका रूल क्या कहता है कि अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है, आपको उसके साथ आपको वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड करी गई हैं जैसे गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, तो व्हाटएवर रेंट यू विल पे, वो रेंट आपका कंपोजिट रेंट होगा. उसको हमेशा, क्योंकि देखो बच्चे हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स ओनर पे करता है, राइट? तो ओनर को मिला कंपोजिट रेंट. अब ओनर को क्या करना है, ही हैज टू स्प्लिट दैट रेंट, और जो हाउस से रिगार्डिंग है, सिर्फ हाउस वाला, नॉट फ्रॉम द सर्विसेज. जैसे 10,000 आपका हाउस था और 2,000 की आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, तो आप 12,000 चार्ज कर रहे थे फ्रॉम द टेनेंट. सो इन दिस केस खाली 10,000 अमाउंट ही चार्जेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी में. जो बाकी 2,000 सर्विसेज से आपको जो मिल रहा है that will be considered as the income from other sources या फिर profit and gains from business और profession. ये जब हम डिटेल में ये दो चैप्टर्स करेंगे ना, जब आपको पता चलेगा, तो या तो इन दोनों में से चार्ज होगा, इन दोनों में से किसी पे, पर जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है, जो खाली बिल्डिंग का रेंट है ना, वो बस आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करो. ठीक है? आप पूरा अमाउंट, पूरा कंपोजिट रेंट आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज नहीं होगा, वहां पे नहीं आएगा वो. ठीक है? उसका खाली वही पोर्शन आएगा जो खाली प्रॉपर्टी का है. सिमिलरली मतलब हमेशा याद रखना कि हाउस प्रॉपर्टी का रेंट ही हमेशा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर आता है. अदरवाइज चाहे कोई भी सर्विस हो, चाहे कोई भी फर्नीचर हो, मशीनरी हो, प्लांट हो अलोंग विद दी हाउस, वो सब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज नहीं करोगे. ठीक है? सो दूसरा पार्ट मैंने डिस्कस किया था कंपोजिट रेंट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट फॉर द प्रॉपर्टी एंड द हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर. मतलब आप प्रॉपर्टी का रेंट ले रहे हो प्लस आप हायर चार्जेस ले रहे हो मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर जो भी आपने उसको प्रोवाइड किया हुआ है टेनेंट को, और ये किसको बिलोंग करता है? ओनर को.
सो उसमें वो कह रहा है कि अगर आपका रेंट सेपरेबल है, आप रेंट को बाइफरकेट कर सकते हो कि दिस इज फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड दिस इज फ्रॉम द फर्नीचर, तो जो प्रॉपर्टी वाला है वो आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और जो बाकी बचा हुआ मशीनरी प्लांट या फर्नीचर का है दैट विल कम अंडर पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। ठीक है, अगर आप सेपरेट कर सकते हो। इन केस इट इज इनसेपरेबल, आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो उस केस में कहता है द एंटायर इनकम विल बी चार्ज्ड अंडर योर पीजीबीपी और एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ वही इनकम आती है जो सिर्फ एट्रीब्यूटेबल होती है टू द लेटिंग ऑफ द हाउस ओनली। ओके, कोई और अगर चार्ज ले रहे हो, कोई और इनकम आपकी आ रही है बाय लेटिंग प्रोवाइडिंग द सर्विसेज और बाय लेटिंग द मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। ठीक है, खाली हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आती है। तो इसलिए आपके दो केसेस हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? कंपोजिट डाउट? Yes, should I move? yes, ma'am. Okay, perfect. Then next is when the house property is owned by co-owners. So co-owners क्या होते हैं? If the house property is owned by two or more persons. ठीक है, जब भी एक से ज्यादा लोग अगर एक ही हाउस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं तो उनको कहते हैं को-ओनर्स। ओके, सो इसमें आपका इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि इफ द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ को-ओनर्स आर डेफिनेट एंड असर्टेनेबल, मतलब देयर इज अ रिस्पेक्टिव शेयर, ओके, दिस पर्सन इज ओनिंग दैट मच ऑफ the share in this property and the other person is owning that much share. So whenever the shares are definite and they are ascertainable, we say that whatever the share the each person has had in a property, वो जितना शेयर होगा उससे इनकम जितनी आएगी वो उसी अकॉर्डिंगली दोनों की टोटल इनकम में ऐड होगी अंडर दिस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, दो ओनर्स थे, ए एंड बी, को ओनर्स थे दोनों, एंड दोनों ने 50-50% का एक मतलब शेयर पे एक हाउस खरीदा हुआ था। ठीक है, दोनों के शेयर कितने थे? 50-50%। उन्होंने फिर फर्दर उसको लेट आउट कर दिया किसी टेनेंट को, और वो कितना रेंट दे रहा है? 50,000। सो इन दिस केस 25,000 दोनों के केस में हाफ हाफ उनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जितना शेयर है उनका उसी शेयर के अकॉर्डिंगली उनकी कंप्यूटेशन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो ऐड हो जाएगा। एंड एक और चीज है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ द शेयर्स आर नॉट डेफिनेट और एंड आर नॉट असर्टेनेबल। उस केस में आपका सेक्शन 27 ऑलरेडी बता चुका है कि इन केस अगर ये, जैसे हम लोगों ने एक हस्बैंड वाइफ का केस डिस्कस किया था ना, कि इन केस अगर हस्बैंड विदाउट एडुक्वेट कंसिडरेशन अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर देता है कोई प्रॉपर्टी विदाउट एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो उस केस में जो इंडिविजुअल है वही लायबल रहेगा। ही हैज कंसिडर्ड टू बी द डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। उस केस में को ओनर कंसेप्ट ही नहीं आता, जहां पे आपकी डेफिनेट कंसिडरेशन होती नहीं है, एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं होती है, आप यूं ही बस ट्रांसफर कर देते हो बिना कोई पैसे के। उस केस में को ओनर्स नहीं आएगा। को ओनर्स आते ही तब है व्हेन देयर इज अ डेफिनेट एंड असर्टेनेबल शेयर ऑफ ईच पार्टी इनटू द डील। जब डेफिनेट शेयर होगा तभी आपके को ओनर्स बनते हैं, अदरवाइज को ओनर्स नहीं बनते, फिर वो डीम्ड एज ओनर्स ही बन जाते हैं। ठीक है, जो हमने केसेस डिस्कस किए थे ना, इन बट ऑल सर्कमस्टेंसेस द ओनर इज द पर्सन इज कंसिडर्ड एज डीम्ड टू बी द ओनर। ठीक है, सो वो सारे केसेस आ जाते हैं, बट व्हेनेवर द शेयर इज डेफिनेट एंड असर्टेनेबल हमेशा वहां पे को ओनर्स का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो को ओनर्स में आपके क्वेश्चंस में पहले ही शेयर होगा कि ये इसका इतना शेयर है, ये इसका इतना शेयर है, तो whatever the value you will get, जो भी आपकी रेंट की अभी हम वैल्यूएशन भी सीखेंगे, सो वो आप उसी रेशियो में you will divide between both the parties और उसी के अकॉर्डिंगली उनकी कंप्यूटेशन। ठीक है, और कभी भी कंफ्यूज मत होना दैट ये को-ओनर्स वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एसोसिएशन ऑफ पर्संस कुछ और होता है, को-ओनर्स कुछ और होता है। ठीक है, कभी भी ये मत सोचना कि इनकी टैक्सेबिलिटी will be as per the association of persons. No, co-owners आपके individuals ही होते हैं। It's just that they have a respective share in the property और respective shares को ही divide करके आप उनकी income from house property में करोगे। फिर जब total income आ जाएगी आपकी gross total income minus deductions करके जो individual के slab rates लगते हैं ना, वही लगेंगे आपके co-owners में। Association of persons से कभी confuse मत होना। ठीक है, so this is the third applicability of this section.
I hope this is clear till here. Then I'll move to this slide. Is it clear? Yes, ma'am. Then next is when house property income is not charged to tax. So there are certain criterias which are specifically mentioned in your Income Tax Act, where the income, even if it is from a building, it will not be charged to tax. So first is income from any farmhouse. So अगर कोई भी फार्म हाउस है और उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है एंड दैट फार्म हाउस शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, but always remember any income from any farmhouse which is for the agricultural purpose, वो आपकी जो भी आपको इनकम आएगी उससे वो प्रॉपर्टी इनकम में नहीं टैक्सेबल होगी. The other one is annual value of any one palace in the occupation of an ex ruler. So किसी टाइम पे कोई रूलर था and he has for example 5 palaces. So it is saying that of any one palace can be exempted, and that whatever the rent or whatever the income you are generating from that one palace, it will not be charged under income from house property. So this is any one palace. Okay. Then next is house property income of a local authority. So in case the local authority has any building and from which they are earning any kind of an income, that income will not be charged to tax under income from house property. Then next is income from a house property to an approved scientific research association or to a university or other educational institution, to philanthropic hospital or other medical institutions. So in some cases maybe income from the house property will not be charged to tax. Then property income of any registered trade union, any political party, इस case में भी नहीं होगा, and income from house property held for any charitable purposes. So these are the situations which are already mentioned in your income tax, in which the income, in case the income from building is generated by any of the following these mentioned cases, the income will not be under house property. So this is, you have to just learn these points are self-explanatory. इसमें कोई understanding की जरूरत नहीं है. These are explicitly mentioned in your act. ठीक है? Now we'll move to the computation part. That is, what is annual value? So this is defined under section 23 subsection 1 clause A, that the annual value of any property shall be the sum for which the property might reasonably be expected to be let from year to year. ठीक है? In other words, if I would say, it is the estimated rental value of the property that can be earned if the property is let out for the full year. So annual value क्या होती है? It is your estimated rental value which you are assuming that if you let out for the entire year, then this will be the value that you will generate. This annual value is the rental value, estimated rental value of the property, जो अगर आप पूरे साल रेंट लेट आउट करोगे, रेंट पे दोगे, तो वो जो जितनी भी अमाउंट जनरेट करेगी, that is called your annual value. So annual value determination depends upon 4 factors. ठीक है? So there are 4 factors which are taken into consideration while determining this annual value. और क्या 4 factors हैं आपके? Actual rent received or receivable, municipal value, fair rent of the property and standard rent. So ये सब क्या है? Actual rent received or receivable is the real rent that the owner of the property earns by giving the property on rent. So this is the actual rent. ठीक है? जो जितना actual में receive करता है from the tenant, this is called the actual rent received by the owner by letting out of the property. So this is actual word. The next is municipal value. Municipal value क्या होती है? This is the estimated value calculated by municipal corporations for charging municipal taxes such as house tax. अभी मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का आपको इन डिटेल कंसेप्ट बताऊंगी. अभी तक बस ये क्लियर होना चाहिए कि इन एवरी सिटी देयर इज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट? ये आपकी एमसीडी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, और उसका क्या काम होता है? टू मेंटेन द सिटी एंड टू क्लीन द सिटी. सारा उस पे इनका सारा काम होता है. इससे रिगार्डिंग दे चार्ज सर्टेन काइंड ऑफ टैक्सेस, जैसे आपका हाउस टैक्स हो गया, आपका सीवेज टैक्स हो गया, आपका वाटर टैक्स हो गया.
ये सारी आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस करती हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस फॉर इन ऑर्डर टू चार्ज द टैक्स दे कैलकुलेट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वो जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की उसको कहते हैं आप म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में गिवन होती है दैट दिस इज द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। थर्ड आपका आता है फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। So it is the estimated rent that exists in the neighborhood and which the owner of the property expects to earn. ये fair rent होता है which you as a member of the neighborhood you know that okay this much rent is exist in my neighborhoods, so this is the rent I can expect to earn from my property also. ठीक है, तो ये estimated rent होता है that exists in the neighborhood in which the owner resides. ठीक है, so ये fair rent होता है। Then comes the standard rent. So standard rent कब आता है? In the disputed cases, the rent of the building is fixed by the court by using the Rent Control Act. So whenever the court is fixing the rent, that rent will become the standard rent. और ये disputed cases में आता है। For example, in the case of Sheila Kaushik, the Supreme Court decided that standard rent is the maximum rent that the owner of the building should expect to earn. A person cannot earn more than standard rent. So इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रेंट जो कोर्ट आपका एस्टेब्लिश करता है, फिक्स करता है अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट है आपका, उसके अंडर आपका कोर्ट फिक्स करता है। तो शीला कौशिक का एक केस था, एक बेंचमार्क केस था जिसमें ये डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसको रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा मिले। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, दिस इज नॉट एक्चुअल रेंट, दिस इज द एक्सपेक्टेशन। तो इन एनी केस the owner of the building cannot expect to earn more than the standard rent. ये आपके सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी। ठीक है, so there are in short 4 types of factors. Actual rent जो एक्चुअल में मिलता है ओनर को, म्युनिसिपल वैल्यू जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद कैलकुलेट करती है, फेयर रेंट जो आपके नेबरहुड में है, और स्टैंडर्ड रेंट विच इज फिक्स्ड बाय द कोर्ट। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स। सबको क्लियर है ये 4 फैक्टर्स? एनी डाउट? बेटा एस्टिमेटेड नहीं, अब जैसे मैं हूं, मुझे पता है कि मेरी साथ वाली बिल्डिंग 5000 पर मंथ रेंट पर उठी हुई है, तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि ओके दिस इज द रेंट विच इज इन द नेबरहुड, तो आई कैन ऑल्सो एस्टिमेट कि मेरी भी शायद प्रॉपर्टी इतने रेंट पे ही उठ जाएगी। आपको आइडिया रहता है ना, आप बिफोर प्रोवाइडिंग योर प्रॉपर्टी ऑन रेंट यू यूजुअली एस्टिमेट ना कि मैं कितना रेंट दूं, तो वो रेंट आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो? बाय आस्किंग योर नेबर्स कि हाउ मच यू आर चार्जिंग टू योर टेनेंट। सो दिस इज हाउ। एनी मोर डाउट्स? क्लियर टू एवरीवन? यस, okay. So next we are moving to the thing that how we can calculate the annual value. So this is the way you can calculate it. So this is the graphical representation. First you will write what is the municipal value, then what is the fair rent which is there in the neighborhood. So दोनों की values आ गई, उन दोनों की values में you choose the higher one, जो भी higher amount होगा वो आपने choose कर दिया। उसके बाद आप देखोगे स्टैंडर्ड रेंट। सो स्टैंडर्ड रेंट जितना भी आएगा, सो जो हायर अमाउंट और स्टैंडर्ड रेंट है उसका आप लोअर निकालोगे, एंड दैट लोअर इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। आपने एक्सपेक्टेड रेंट जब शेला कौशिक का सुना था, जब उसने यही बोला था कि द एक्सपेक्टेड रेंट इन एनी केस शुड नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, इसका मतलब स्टैंडर्ड रेंट से कम तो हो सकता है बट स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो जो भी यहाँ पे हायर वैल्यू आएगी और स्टैंडर्ड रेंट, उन दोनों का आप लोअर चूज करोगे, दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। फिर आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, फिर आप यू विल कंपेयर दिस विद योर एक्चुअल रेंट, और एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट का जो हायर होगा दिस इज कॉल्ड योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे आप म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ऑन और बिफोर 31st March of the financial year, दिस इज योर प्रीवियस ईयर।
तो जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस उसने पे कर दिए होंगे ऑन और बिफोर, दैट विल बी अलाउड टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू, देन इट इज इक्वल्स टू नेट एनुअल वैल्यू। आपके इनकम टैक्स एक्ट में ग्रॉस और नेट ऐसे गिवन नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग that we are using this gross minus municipal taxes is equals to net. So in every book you will be finding this gross and net, but when you look at the act they have not specifically mentioned that this is the gross and annual value and this is the net annual value, but in all the books you will find this gross and net. ठीक है? So this is the graphical representation. एक बार अच्छे से just click a picture of it because next अभी हम question करेंगे इसको समझने के लिए, तो सब फोटो क्लिक कर लो क्योंकि उससे फिर आपको पता चल जाएगा किसका हायर लेना और किसका लोअर। ठीक है? सो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू आएगी, फेयर रेंट, उन दोनों का हायर, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट लेना, फिर हायर और जो अमाउंट था स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करके अगर लोअर होगा तो लोअर, वो आपका एक्सपेक्टेड रेट बनेगा। फिर एक्सपेक्टेड रेट और एक्चुअल रेंट को यू विल कंपेयर और उसका हायर विल बी इक्वल्स टू योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है? So this is illustration 1 and we have been asked that we have to compute reasonable expected rent for Mr. X as per the following cases. So this is the reasonable expected rent. This is not gross annual value. Okay? हमें expected rent निकालना है for Mr. X. So in first case this is the municipal value. MV is your municipal value, fair rent and your standard rent. So try to solve it and write the expected rent. ठीक है? एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है और ये सारे केसेस हैं आपको जो गिवन है। जस्ट ट्राई इट आउट, टेक योर 2 minutes. So it's 55, 45, 45, 32 and 60. Perfect. You all have attempted it correctly. So first case, जिसको नहीं समझ में आया, I am just discussing. इन दोनों अमाउंट का higher you will take and फिर नीचे जो भी हायर अमाउंट आएगा उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करोगे। इसमें स्टैंडर्ड रेट एन है, नॉट एप्लीकेबल है, तो इस केस में हायर इज 55। नेक्स्ट केस हायर इज 60 और 60 को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेट से तो लोअर है 45, सो आंसर इज 45। देन यहाँ पे हायर इज 50, देन अगेन लोअर इज 45, सो 45। यहाँ पे हायर इज 37, 37 and 32, lower is 32, again 32. यहाँ पे higher is 60 and when you compare with standard rent it is 70. So in this case it is 60 not 70 because आपका standard rate ज़्यादा है इस केस में। तो clear है that reasonably expected rent cannot exceed the amount of standard rent. However, it can be lower than standard rate. in इस केस में 70 था ज़्यादा, but ये 70 से कम हो सकता है, but in any case ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है? सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। मैम ये फर्स्ट केस में बता दो, फर्स्ट केस बता दो मैम। फर्स्ट केस वाला ये ए वाला बच्चे, इसमें ना एन लिखा है तो फिर कैसे? यस मैम। बेटा एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल। आपका स्टैंडर्ड रेंट ना खाली डिस्प्यूटेड केसेस में ही अवेलेबल होता है कि दिस इज द स्टैंडर्ड रेंट। हर केस में ना कोर्ट नहीं डिसाइड करता है कि आपका स्टैंडर्ड रेंट है, क्योंकि कोर्ट डिसाइड करता है ना डिस्प्यूटेड केसेस में एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट कि ये ही इतना स्टैंडर्ड रेंट है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता।
तो किसी किसी केस में आपको मिलेगा, किसी किसी केस में आपको स्टैंडर्ड रेंट नहीं मिलेगा. So in this case it was not applicable, so you will not consider this thing, you will just take the higher of municipal value and fair rent. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली अगर है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल है, अगर वो मिसिंग है तो इट मींस इट इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है. Yes, ma'am. So this is illustration 2. So Mr. X is the owner of a shop in the Sadar market which has municipal value of rupees 18,000 per month. Fair rent is rupees 25,000 per month. Standard rent as per Rent Control Act is rupees 20,000 per month, and the shop is actually let out at the rate of rupees 30,000 per month. Municipal taxes paid are rupees 25,000. Calculate its net annual value. Try करो ये question. बच्चे 5,000 कहाँ से अमाउंट निकाल रहे हो आप? इट इज पर मंथ 3,35,000. 5,000 कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग? $3,35,000 is correct, I think. चलो, I'll just show you. First, municipal value. Municipal value कितनी है? 18,000 into 12, because in this question it was given per month, और आपका जो definition है annual value की क्या कहते हैं? For the entire year. So you have to multiply 12. So it is into 12 is 2,16,000, and fair rent क्या है आपका? 25,000 into 12, 3 lakh. So इसका higher क्या है? 3 lakh amount. Okay, 3 lakh amount is the higher of municipal value and fair rent. उसके बाद आता है आपका standard rent. Standard rent कितना है? 20,000 into 12, so 2,40,000. So lower of 3 lakh and 2,40,000 is 2,40,000. This is your expected rent. Now actual rent is 30,000 into 12, that is 3,60,000. So इन दोनों का higher क्या है? 3,60,000. So 3,60,000 is your gross annual value minus municipal taxes paid, which is 25,000. So net annual value is 3,35,000. Okay. I don't know how you guys were calculating 5,000. I don't understand. बच्चे कैसे कैलकुलेट किया है? ये 5,000 वाले इतने केसेस हैं, क्या फॉलो किया है आपने? मैम पर मंथ देख रहे थे हम, लेना भूल गए थे. अच्छा, इंटू 12 ने किया था. सो पर मंथ भी अगर करोगे 5,000 इंटू 12 इज 3 lakhs. उसमें टैक्सेस पे करे थे? टैक्सेस पे करने के बाद 5,000 आ रहा था? मैम वो कुछ भी नहीं लिया था इनटू 12 करके, सारा पर मंथ के अकॉर्डिंग लिया था, मतलब पर मंथ नहीं कंसीडर किया था. ठीक है, बट अब आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग है कि मत करना है ऐसा, क्योंकि 5,000 अगर ऐसे एंड में निकाल के बाय 12 करोगे ना तो भी आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि आप 25,000 देखो ना, म्युनिसिपल टैक्सेस तो पूरे 25,000 पे हुए हैं आपके. ये क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस वर टोटल, बाकी सब आपका पर मंथ था. ठीक है. सो ऑलवेज मेक श्योर व्हेनेवर यू आर डूइंग अ कैलकुलेशन फॉर एनुअल वैल्यू, इट शुड बी फॉर द एंटायर ईयर. मैम वो स्टैंडर्ड रेंट हाँ, ज्यादा कैसे ले रहा है रेंट? ले रहा है, लोअर ले रहा है, 2,40,000 ही तो ले रहा है बेटा. ये एक्सपेक्टेड है. आप देखो, आपको क्वेश्चन में मैंने जब पढ़ाया था क्या बोला था कि द पर्सन कैन नॉट एक्सपेक्ट टू अर्न मोर देन स्टैंडर्ड रेंट.
वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बट एक्चुअल रेंट कैन बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट। देखो मैंने पुराने में यहाँ पे बताया था ना आपको, ये इस केस में ना हर जगह याद रखना कि एक्सपेक्टेड वर्ड है, कि द पर्सन कैन नॉट एक्सपेक्ट टू अर्न मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। ये एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी कैन बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये अभी एक्सपेक्टेशंस पे बात हो रही है। आपका यूजुअली एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही होती है आपका रेंट। ठीक है, सो हमेशा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का हायर लेना है आपको। क्लियर सबको? Okay. Now we'll just quickly understand about this municipal taxes. एक क्वेश्चन करेंगे municipal taxes पे भी। So in every city there is an entity who has the responsibility of maintaining that city, और जो entity होती है it is called as municipal corporation। ठीक है, हर city की एक municipal corporation होती है। So in order to meet the cost of maintenance of the city, the municipal corporations charges tax from the persons living in that city. So there are various kinds of municipal taxes like house tax, water tax, sewage tax, lightning tax and so on. ठीक है, काफी टाइप के टैक्सेस लेती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहते हैं? अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड, that if municipal taxes are paid by the owner on or before 31st March of the financial year, then such deductions are allowed to be reduced from gross annual value. इस स्टेटमेंट का ना मतलब समझो, ये कह रहा है कि 31 मार्च से पहले जो पे कर दिए, इसका मतलब किस बेसिस पे चल रहा है? पेड बेसिस पे, अक्रूवल कंसेप्ट पे नहीं चल रहा है म्युनिसिपल टैक्सेस। अगर म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर दिए पहले तो रिड्यूस हो जाएंगे, अगर इसके बाद करें तो रिड्यूस नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर आप कोई भी अमाउंट एडवांस पेमेंट कर देते हो म्युनिसिपल टैक्सेस का, तो सिंस यू आर मेकिंग अ पेमेंट, भले ही आप एडवांस कर रहे हो तो भी इट इज अलाउड टू बी रिड्यूस फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कोई भी आउटस्टैंडिंग या अक्रूवल नहीं है अलाउड। हमेशा देखना कि पेड वर्ड होना चाहिए। अगर पे किए हैं तो अलाउड है, अगर पे नहीं किया तो नॉट अलाउड है, और डेट आपकी रखी है 31st March of the financial year. So in every question you have to check what is the date of the payment. If the date is lying prior to 31st March of the financial year, then we will be allowed as deductions, otherwise it will not be allowed as deduction. ठीक है, सो म्युनिसिपल टैक्सेस हमेशा पेड बेसिस पे रहता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, म्युनिसिपल टैक्सेस हैव टू बी पेड बाय द ओनर्स ओनली इन ऑर्डर टू गेट द डिडक्शन। अगर ओनर नहीं कर रहा और वो टेनेंट से करा रहा है, तो इन दैट केस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से वो डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, income from house property is chargeable to the owners. So अगर owners ही municipal taxes pay कर रहे हैं तो ही reduce होगा आपके gross annual value से, otherwise अगर tenant कर रहा है तो वो reduce नहीं होगा। ठीक है, so this is the concept of your municipal taxes. ठीक है, हमेशा paid basis पे होगा और हमेशा owner ने pay किया होना चाहिए। ठीक है, so अभी एक मैं illustration कराऊंगी, उससे आपको सब clear हो जाएगा। Is a owner of a house which has municipal value of rupees 18,000 per month, fair rent is rupees 25,000 per month, and the house is let out at the rate of rupees 30,000 per month. ये सारा सेम है जो आपका पुराने वाला था ना, जिसमें आंसर आया था 3,35,000। ये पूरी स्टेटमेंट, सारे नंबर्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। नेक्स्ट इज म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ द हाउस आर फ्लैट 20%. So you have to calculate its net annual value as per the following cases for the assessment year 2021. So 2021 is your assessment year. So previous year was 1920. ठीक है? So these are the cases. ठीक है? So आपका उसमें gross annual value 3,60,000 था, उसमें से हमने 25,000 municipal taxes pay करे थे। तो अभी हमने municipal taxes pay नहीं किया, उसके अलावा gross annual value कोई सी भी केस हो सब में सेम है। ठीक है, अभी मैं केसेस डिस्कस करूंगी, ये कैलकुलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आई एम जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट। ठीक है, पहला केस कहता है आपका म्युनिसिपल टैक्सेस आर पेड ऑन 31st March 2020। ओके, तो म्युनिसिपल टैक्सेस कब पे हुए हैं आपके? 31st March 2020। तो वो क्या कंडीशन कहती है? पेमेंट
on or before 31st March. So it is on 31st March 2020. So it is allowed to be reduced from GAV. और कितना कह रहा है? Flat 20%. So municipal taxes are always calculated on your municipal value. क्योंकि municipal value इसीलिए बनाती है municipal corporation so that वो tax charge कर सके. तो municipal value कितनी है आपकी? 2,16,000. So into 20%. Into 20% is your 43,200. So first वाले केस में आपका 43,200 आपका म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउ होंगे. दूसरा केस आपका क्या कहता है? म्युनिसिपल टैक्सेस आर पेड ऑन 2 अप्रैल 2020. अब ये कब पे हो रहा है? आफ्टर योर 31st मार्च 2020. उसके 2 दिन बाद पे हो रहा है. और आपकी स्टेटमेंट क्या कहती है? इट शुड बी पेड ऑन और बिफोर 31st मार्च 2020. सो इस केस में आपका म्युनिसिपल टैक्स क्या होगा? निल. आपको कुछ भी अलाउड नहीं होगा बिकॉज यू हैव नॉट पेड ऑन और बिफोर 31st मार्च. सो इन दैट केस इट विल बी निल. ओके. थर्ड केस, half of municipal taxes are paid on 31st March 2020 and half on 2nd April 2020. So in this case आधा आपका 31st मार्च 2020 पे आपने पे कर दिया और आधा कब किया है? 2 अप्रैल. तो इस केस में कितना अलाउड होगा? हाफ अमाउंट. ठीक है. सो जो भी आपका 43,200 था डिवाइड बाय 2. सो 21,600 आपका यहाँ पे अलाउड होगा. जो बचा हुआ 21,600 है वो नेक्स्ट ईयर होगा क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर पे किया है. मतलब 2 अप्रैल आपका नेक्स्ट ईयर में लाई करता है. So next year ही मिलेगा, इस साल नहीं मिलेगा. Then municipal taxes are paid by tenant on 31st March 2020. तो पेमेंट तो टाइम पे हो गई है on 31st March 2020, बट ओनर ने नहीं करी है. It is being paid by the tenant. So tenant ने करी है तो it means no deduction allowed. So यहाँ पे आपके municipal taxes nil आ जाएंगे. ठीक है. भले ही पे हो गए हैं, but it will be the last one is municipal taxes are paid for the current year 1920 and also advance for the next year 2021 on 31st March 2020. So 31st March 2020 तो हमारे इस साल में लाई करती है और उसने क्या किया है? 1920 का भी पे कर दिया और उससे हमारा जो अगला साल आ रहा है उसका भी पे कर दिया एडवांस में. तो इन टोटल उसने 2 साल की पेमेंट कर दी. तो ये पेमेंट के बेस पे जाता है तो दोनों साल का अलाउड होगा. सो आपका क्या था? 43,200 into 86,400 आपका अलाउड हो गया. तो दिस इज योर आंसर इन ऑल द रिस्पेक्टिव केसेस. ठीक है. अगर 31st मार्च के बाद किए हैं तो निल, टेनेंट ने किए हैं तो निल, अगर ज्यादा कर दिया तो ज्यादा अमाउंट. तो हमेशा आपका म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बेसिस पे चलता है. ठीक है. So I hope this is clear to everyone. Any doubts? मैम अगर ओनर टेनेंट को रीइंबर्स कर दे टैक्स तो फिर चार्जेबल होगा? किसने? ओनर ने रीइंबर्स कर दिया टेनेंट को. हाँ, फिर तो अगर उसने 31st मार्च से पहले उसने टेनेंट से भरवाया है बट उसने रीइंबर्स कर दिया है तो फिर हो जाएगा. क्योंकि उसमें पता है क्या होगा? उसमें आपको टैक्सेस पे शायद ना मिले, आपका जो एक्चुअल रेंट जो आप चार्ज कर रहे हो ना उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने रेंट में से उसका रेंट कम कर दिया. तो भी शायद म्युनिसिपल टैक्सेस में से आपका पे आपको नहीं हटाया जाएगा इतना अमाउंट, पर आपके एक्चुअल रेंट में से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो इन एनी केस आपको फायदा तो मिल ही जाएगा उस चीज का क्योंकि आपने उससे रेंट चार्ज किया, फिर उसने वहां पे म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर दिए, फिर आपने उसका रेंट में से उसको 5,000 वापस दे दिए कि तूने मेरा टैक्स भरा है तो मैं रेंट में से मैंने 5,000 काट लिए. तो उसका फिर एक्चुअल रेंट एंड रिसीवेबल कम हो गया. तो फिर एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट एक्चुअल रिसीवेबल का हायर लेते हो तो इन एनी केस वो ऊपर ही एडजस्ट हो गया आपका. तो हमेशा ये ओनर और टेनेंट की अंडरस्टैंडिंग पे है कि तुम कैसे कर रहे हो. बट म्युनिसिपल टैक्सेस तभी होंगे जब ओनर पे करेगा. एनी अदर डाउट? लास्ट पार्ट में डबल क्यों लिया हमने टैक्स? बेटा डबल ना आपका देखो उसने एडवांस भी कर
दिया पेमेंट, तो जो आपकी अगले साल की वैल्यू थी ना, जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस उसको पे करने थे वो उसने इसी साल कर दिया। ठीक है, तो जब भी आप अगले साल का भी इसी साल कर दोगे ना, तो ये हमेशा ना पेमेंट बेसिस पे चलता है। तो आप कितनी भी एडवांस पेमेंट कर दो, अगर आप एडवांस पेमेंट कर दोगे जिस साल में करोगे ना वो अलाउ हो जाएगा आपका। ठीक है, बट इनकेस आपने कितना पे कर दिया, जितना भी पे किया होगा ना उस फाइनेंशियल ईयर में वो सारा अलाउड हो जाएगा आपको रिड्यूस होना। ओके ठीक है, और किसी को डाउट है? नेक्स्ट है आपका determination of NAV in various situations. So there are various situations in which we have to determine this net annual value. जिसकी पहला केस है हाउस प्रॉपर्टी इज फुल्ली लेट आउट फॉर द होल ईयर। ठीक है, सो इसमें आपका सेम प्रोसेस चलेगा that we have discussed so far, that your house property is given on rent for the entire year. तो उसमें जो हमने अभी तक कंसेप्ट सीखा है ना वही चलेगा, that municipal value और फेयर रेंट का हायर, फिर जो भी अमाउंट होगा उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करोगे उसका लोअर, दैट शुड बी योर एक्सपेक्टेड रेंट, देन यू विल कंपेयर विद एक्चुअल रेंट, you will take the higher of that amount and higher will be your gross annual value, then you subtract your municipal taxes, that will be equal to your net annual value. So whenever the house property is given on rent for the entire year, the concept that we have discussed so far will be same. Okay, so this is your A part. Then this is next part, that house property is let out for part of the year and is vacant for the remaining part of the year. So in case अगर कुछ ही पार्ट में आपका हाउस प्रॉपर्टी वाज लेट आउट, उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें इट वाज वेकेंट, वो खाली था, किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया था, इसका मतलब आपको कोई रेंट नहीं आ रहा था उसका, तो उस केस में आप क्या करोगे, सेम पहले तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर और उस अमाउंट का स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करके लोअर, सो दैट विल बी इक्वल टू योर एक्सपेक्टेड रेंट। इसके बाद आप क्या करोगे, आप लॉस ऑफ रेंट ड्यू टू वैकेंसी को एक्सपेक्टेड रेंट में से ही सब्ट्रैक्ट कर लोगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर रीजनेबल रेंट, क्योंकि आपको लॉस भी हुआ है। ये तो आपके पूरे आपने 12 मंथ्स के अकॉर्डिंगली यू हैव कैलकुलेटेड, क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यू भी इंटू 12 कर दिया आपने, फेयर रेंट भी इंटू 12, एक्सपेक्टेड रेंट भी पूरा इंटायर ईयर का आ गया। बट एक्चुअल में आपका जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें द प्रॉपर्टी वाज वेकेंट, तो आपको लॉस हुआ था, तो वो पर्टिकुलर पार्ट का जितना भी आपको लॉस हुआ है दैट यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रेंट, सब्ट्रैक्ट करके जो भी आपका अमाउंट आएगा दैट इज योर रीजनेबल रेंट, उसको फिर आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करोगे, उसका हायर लोगे, वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनेगा, फिर आपके म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस होंगे, फिर नेट एनुअल वैल्यू। तो अभी जो ये कंसेप्ट है ना, बस ये इसमें इंट्रोड्यूस होता है जिसमें पार्ट ऑफ द ईयर इट वाज रिमेन वैकेंट। ठीक है, कि हम अपने एक्सपेक्टेड रेंट को रीजनेबल रेंट बनाते हैं, एक्सपेक्टेड में से माइनस कर देते हैं लॉस ऑफ रेंट ड्यू टू वैकेंसी, फिर आपका इक्वल्स टू हो जाता है रीजनेबल रेंट, उसके बाद फिर वापस सारा प्रोसेस सेम। तो बस ये एडिशनल एक चीज आ जाती है। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि द प्रॉपर्टी वाज रिमेन वैकेंट फॉर लाइक 3 months और फॉर 4 months, तो हमेशा लॉस ऑफ रेंट निकाल लेना ड्यू टू वैकेंसी, वो सब्ट्रैक्ट कर देना एक्सपेक्टेड में से, रीजनेबल आ जाएगा फिर एक्चुअल। ठीक है, सो बच्चे ये ना मैंने अभी सिर्फ डिस्कस किया, अभी देयर आर 6 मोर केसेस, आई थिंक देयर आर टोटल 8 केसेस, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक बस आपको इसकी कंप्यूटेशन आ जानी चाहिए और सारे फैक्टर्स समझ में आते हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में ही करेंगे, अदरवाइज इट विल बी टू मच फॉर यू। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। शुड आई टेक अटेंडेंस नाउ?